record this. Let's start. Day 1, count your blessings. ये आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे. Shall I make it? ठीक है. ये जो पिक्चर देख रहे हैं, we can see a window here. And देखिए पूरा जो एक टेबल है, चाय का कप है. There are fresh flowers here. There's a journal here with a pen. So ये सुबह के टाइम में क्यों बोला हुआ है लिखने के लिए? आप देख रहे हैं सब कुछ. It's पूरा सुबह का सीन है यहाँ पे. And everything is fresh flowers का मतलब क्या है? Because fresh flowers are depicting everything is very fresh in our minds. Okay. So let us begin. Shall I start? एक मिनट दीदी, just a second. I will make it one page only. Yes, so then it becomes easier for me to read. Let's start. When I started counting my blessings, my whole life turned around. Willie Nelson, singer and songwriter. You will have heard people say to count your blessings, and when you think about the things you're grateful for, that's exactly what you're doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. Yes. यहाँ पे विली नेल्सन बोल रहे हैं हमको कि when I started counting my blessings, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई. वो कैसे बदल गई तो वो we will discuss after a few days जब हम लोग सब blessings लिखना शुरू करेंगे. But this everybody says कि अगर हम अपनी नियामतें गिनते हैं, अगर हम blessings को अपना daily दिमाग में रखते हैं that this is what I am grateful for, even the smallest of the things, then we achieve a lot in our lives. Okay, you will have heard people say हाँ ये तो सभी बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो, ये करो, वो करो, नेगेटिव मत सोचो. बट ये हमको कोई नहीं बताता कि कैसे हमको पॉजिटिव रहे और नेगेटिविटी से कैसे दूर रहे. सब बस खाली पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो. सब बोलते हैं ना कि अच्छा सोचो, अच्छा सोचो. अच्छा कैसे सोचे? बिकॉज हमारे तो चारों तरफ देयर आर पीपल हु आर रेडी टू पुल अस डाउन, isn't it? So when there are, in spite of the fact that there are people around who are ready to pull us down, हमको नीचे अपने साथ लेकर जाना चाह रहे हैं, अगर उसके बाद भी we have a way and a very simple way to remain positive, then why should we not take that way? Okay. Shall I start? Yeah, please. When you're grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you've done, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for you work will suddenly appear. Yes. So अगर हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी ग्रेटफुल होते हैं, अगर भगवान को थैंक यू बोलते हैं. सपोज आई हैव अ स्मॉल कार एंड मेरे बगल से कोई बड़ी गाड़ी जाती है. मेरे को लगता है कि काश मेरे पास वो गाड़ी होती. मेरे पास क्या है? ये डब्बा. बहुत बार हम सोचते हैं मेरे पास क्या है. अरे आपके पास गाड़ी तो है, आप गाड़ी में तो जा रहे हैं. बगल वाले को देखिए, वो स्कूटर में है, साइकिल में है, या कोई पैदल भी चल रहे हैं. इतनी धूप है, पसीने से एकदम लथपथ,
और हम तो बड़े मजे से अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। मेरे पास एक 3 कमरे का फ्लैट है, ठीक है, रेंटेड फ्लैट है, पर फ्लैट तो है। मैं मजे से रह रही हूँ। मैं एक कमरे में हूँ, मेरे बच्चे दूसरे कमरे में हैं, मेरे पेरेंट्स दूसरे कमरे में हैं। वी ऑल हैव आवर ओन स्पेस। ठीक है, क्या हुआ अगर किसी के पास बंगलो है? लेट मी हैव माय ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम ऑफ हैविंग अ बंगलो, बट be grateful that you at least have a house to live in. There are people who are living in huts. There are people who are living on the roads. We are much better off. है कि नहीं है? अगर हमारे पास आज पॉकेट में या वॉलेट में 500 रुपए हैं और मैं सपोज शॉपिंग गई हूँ, आई एम अनेबल टू परचेज दैट गुची बैग विच आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, लेट मी नॉट गेट डिसहार्टेंड। लेट मी नॉट से ओ मेरे पास तो कभी कुछ नहीं होता, हाउ विल आई हैव, मेरा तो ड्रीम होगा ही नहीं पूरा। अरे मेरे पास 500 रुपए तो है, आई हैव 500 रुपीज, जिसमें से भी अगर मैं 20 रुपए भी किसी को देती हूँ तो उसका शायद वो दिन भर का मील हो जाएगा। Right? So let me be grateful for that 500 rupees in my wallet. और जब हम ये छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, वी नेवर नो हमारे पास कहाँ से, एंड एक्चुअली ये मैजिक कहाँ से होता है कि हमारे पास हमारे मन मुताबिक चीजें हमारे पास आने लग जाती, या तो कहीं से गिफ्ट आ जाएगा, या हमारा ड्रीम जॉब हमको मिल जाएगा, हमको कहीं प्रमोशन मिल जाएगा, हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, हमारे पास अनएक्सपेक्टेडली कोई लॉटरी निकल जाएगी। Very, very unexpected and weird things happen when you believe in magic. As Roald Dahl told us, those who do not believe in magic will never find it. But if you believe in it, you will see magic everywhere. And if you're positive, you're grateful, you can achieve and attain everything that you want. Let's continue, please. The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. हाँ, तो अगर हम सपोज there are only 2 ways, either I am positive or I am negative. I cannot have both. There is nothing called so-so. There is nothing called fine. There is nothing called okay. Either I am very good or I am not good. Okay? Yes. या तो मैं बहुत पॉजिटिव हूं या मैं नेगेटिव हूं। तो अगर मैं नेगेटिव हूं तो मैं क्या कर रही हूं? मैं अपने कर्सेस देख रही हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे हस्बैंड में ये प्रॉब्लम है, मेरी मदर इन लॉ ऐसी है, मेरा बॉस ऐसा है, मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, मेरा हेल्थ ऐसा है। हम हर चीज को, अरे हम सड़क पे जा रहे हैं, उफ ना रास्ता जाम है, इतनी गाड़ियां क्यों है सड़क पे। और कैलकटन्स का तो एक फेवरेट है ममता बनर्जी, ये गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर, अरे उसने कितना कुछ किया है। वी हैव क्लीन रोड्स टू ड्राइवर कार्स, स्मूथ सड़कें हैं हमारे पास, पार्क्स, उन्होंने कितने सारे पार्क्स बनाए हम लोगों के लिए, फ्रेश एयर मिलता है हमको, बट हम कभी कोई पॉजिटिव चीज बोलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिविटी में है, हम पॉजिटिव नहीं देख रहे हैं। अगर हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, इफ वी आर ग्रेटफुल, अगर हम अपनी नियामतें देखते हैं, वी आर थैंकफुल, हम कृतज्ञ हैं, आई एम टेलिंग यू ऑल द सिनोनिम्स। ओके, अगर हम
अच्छा सोच रखते हैं, अच्छी बातें सोच रहे हैं, तो नेगेटिविटी में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है ना। अगर नेगेटिविटी में है तो दिन भर मतलब कोई से बात भी करेंगे ना, पता है मेरी मदर इन लॉ ना ऐसी, उसको तो ना कुछ नहीं पता, मेरे बच्चों को भी नहीं देखती। आपके पति को तो पाल के बड़ा किया है ना उन्होंने, बी ग्रेटफुल, शी इज गिवन यू योर हस्बैंड। मेरा हस्बैंड रोज रात को देरी से आता है, मेरे को तो देखो, मेरे फ्रेंड को देखो, दिन में हफ्ते में 4 बार बाहर खाने जाते हैं, वो तो मुझे एक बार भी नहीं लेके जाता। मुझे मूवी गए को तो अरसा हो गया। मेरी कंप्लेंट थी थोड़े दिन पहले तक ये कि हम तो मूवी देखने नहीं जाते हैं, जिसमें मेरे को बहुत बाहर लेके जाते थे, पर उनको क्योंकि मूवी देखना कम पसंद है तो मैं यही सबके सामने बोलती, मुझे मूवी नहीं दिखाने लेके जाते। अब मेरे को कोई मतलब बिलीव मी, अब मेरे दिमाग में भी नहीं आता। सो कंप्लेंट्स का कोई एंड नहीं है। एंड व्हाट हैपेंस, यू नो, लास्ट चैप्टर वी रेड 10 positives is equal to 1 negative। जहां हम एक नेगेटिव बोलते हैं ना, हमारी 10 पॉजिटिव बातें कटती चली जाती। ये सतह है, यह सतह है। हम पॉजिटिव से ऊपर, पॉजिटिव बातों से ऊपर 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 जाते जा रहे हैं अपना ड्रीम्स अटेन कर। एक नेगेटिव बोला 10 कदम पीछे, दूसरा नेगेटिव बोला और 10 कदम पीछे। सोचिए और कितना पॉजिटिव बोलना पड़ेगा कि हम उधर तक आए वापस। और एक बार जब हम नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं ना, तो हम दुनिया की सारी नेगेटिविटी एक बार में फटाफट फटाफट 10 मिनट तक कंटिन्यूसली बोलते चले जाते हैं। 10 मिनट, उसके लिए हमको 10 घंटे पॉजिटिव्स बोलना पड़े। Getting my point? Please continue. Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to count your troubles. Matthew E. Babcock, writer and clergyman. Yeah, please hold. This is one of my favorite quotations. Better to lose count while naming your blessing, मतलब आप blessing सोचते सोचते आप गिनती भूल जाएं, आपके लाइफ में इतनी blessings है। That is much better than losing your blessings while being negative and counting your curses. अगर हिंदी में हम इसको बोले तो अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि हम अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। बेटर टू लूज काउंट मतलब हम इतना अपना दिन भर आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, गॉड आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू दिस, थैंक यू दिस, थैंक यू दिस, मतलब दिन भर आप बोलते जा रहे हैं। दैट इज सो मच बेटर देन सेइंग नेगेटिव एंड losing your blessings. Okay, please continue. First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. Shall I continue? Yes, no. First thing in the morning or as early as possible in the day. इन्होंने तो बोला है as early as possible, but we will try to do it first thing in the morning. Why? There is a reason for that. कि जब हम उठते हैं, एकदम जैसे ही हम उठते हैं ना, हमारा मन जो होता है, हमारा चेतन मन तब जाग रहा होता है। Our conscious mind is just getting to be awake. And सॉरी, जो हमारा अचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड, वो बस अब सोने जा रहा है, राइट? तो वी आर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेयर वी आर हाफ asleep and half awake and we have nothing else in our mind except all the positive things that we have been thinking about. Okay, so when we are writing that, and please try and write it before sunrise,
बिकॉज वो जिसको हम लोग ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, अगर उसमें हम लोग लिखते हैं तो वो ना बोलते हैं वो 10,000 टाइम्स इंक्रीज होता है। आपका वो एक पॉजिटिविटी आपके लाइफ में 10,000 टाइम्स इंक्रीज होता है। ओके तो जब हम उसको ब्रह्म मुहूर्त में और एकदम उठते के साथ उसको लिखते हैं तो वो हमारा ड्रीम्स के और पास हमको बहुत जल्दी लेके जाता है। ओके सो अब हमको क्या करना है, yesterday I asked all of you to arrange for a journal। एक कॉपी बनाने बोली थी मैंने, डायरी हो सकती है, नोटबुक हो सकता है, बट इसमें हम लोगों को 28 दिन तक डेली लिखना है। उनका वॉल्यूम, नंद आपका वॉल्यूम कम नहीं है क्या? बिकॉज मेरे यहाँ पे तो वॉल्यूम फुल है। एनीवेज तो उस जर्नल में हम रोज सुबह उठ के 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे। उठते के साथ यू कैन आइदर कीप इट ऑन योर साइड टेबल कि सुबह उठते ही आपको दिखे वो, और आप एकदम उठते के साथ, मतलब जनरली यू नो व्हाट दे से इज कि आंख खुले और लिखने बैठे, बट यस आई कैन अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू यूज द वॉशरूम एंड भाई हो सकता है कि आपको दूसरे रूम में जाना पड़े, whatever, but try to do it। they my mentor used to say that take your notebook into the washroom and write it there। और somebody told me कि आप तो फोन में टॉर्च होता है, टॉर्च की लाइट से लिखो। It can be as you prefer, but try to do it एकदम उठते के साथ। and write 10 blessings। हम बताएंगे आपको कैसे लिखना है उसको, लेकिन प्लीज डू नॉट टाइप इट ऑन अ कंप्यूटर और फोन, नहीं। उसका कारण ये है कि हम पेन और पेंसिल के साथ बड़े हुए, कॉपी और पेंसिल के साथ, कॉपी और पेन के साथ हम बड़े हुए। वी हैव स्टार्टेड आवर स्कूल लाइफ विद अ कॉपी एंड पेंसिल, राइट। तो हमारा उसमें जो हार्ट जाएगा, जो फीलिंग्स उसमें जाएंगी, वो कंप्यूटर पे और फोन पे नहीं जाएगा। till a few days back, you know, I never used to like WhatsApping people। मुझे लगता था मैं फोन में ज्यादा बेटर बात करती। My husband used to travel ना, तो मैं उनको फोन कर करके परेशान किया करती थी। I never used to message him। My daughter is studying out, तो she tells me, मम्मी आप मैसेज क्यों नहीं करते हो? आपको जो बोलना है मैसेज करो। तो नहीं, मेरे को फोन में बात करना ज्यादा पर्सनल लगता है। I can hear your voice, so that become more personal for us। आज की जनरेशन शायद कंप्यूटर में लिखकर हो जाएंगे because they are studying on the computer, but we have grown up writing on paper and pen, so we will use that। Okay, please continue। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person or situation, you will feel gratitude more deeply। Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling। So with each item on your list, write the reason why you are grateful for it। Yes, Yeah, awesome। please hold। यहाँ पे लिखा हुआ है that we should always give reason for being thankful। आज मैंने शायद कल भी बोला था ये बात कि अगर हम, मेरे को किसी ने कुछ दिया, मैंने बोला थैंक यू, ओके, और सेम चीज किसी और को मिली है और उसने बोला थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट, आई लव इट। सामने वाला को क्या बेटर लगेगा, मेरा थैंक यू कि जो बगल वाले ने बोला? ऑब्वियसली जिसने बताया कि उसको कितना अच्छा लगा, उसका थैंक यू का ज्यादा वेटेज है कि नहीं है? उसके थैंक यू का ज्यादा वेटेज है। आज अगर हम अपने बॉस के पास जाते हैं, बोलते हैं कि सर मेरे को छुट्टी चाहिए, और मेरा कॉलीग गया, उसने बोला कि सर
मेरे को ना मेरी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाना है, उसके लिए छुट्टी चाहिए। किसको छुट्टी ज्यादा मिलने का स्कोप है? जिसने कारण बताया, जिसके कारण में दम है, उसको छुट्टी मिलेगी। So when we are giving gratitude and specifying why we are grateful for that particular thing or person or whatever, तो उस चीज में ज्यादा वेटेज आएगा। Why? Because the magic of gratitude happens to the degree of our feeling. हम जितनी फीलिंग से थैंक यू बोलेंगे, जितनी फीलिंग से कारण बताएंगे यूनिवर्स को, जितना हम उसमें अपना हार्ट देंगे, यूनिवर्स हमको वापस देगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Shall I read this here, some of the ideas for writing your list? Yes, yes, you have to read that. Yeah, some of the ideas for writing your list. I am truly blessed to have, then mention what, because, why. I am so happy and grateful for what, because, and why. I am truly grateful for what, because, you have to mention why. With all my heart, thank you for what, and then because, you write why. Yes. अब यहाँ ना 4 ऑप्शन हम लोगों को दिए हुए हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यू हैव टू फॉलो दिस बुक टू द टी। यू हैव टू फॉलो, यहाँ पे जिस तरह से बताया हुआ है हमको उसी तरह से लिखना है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम अपने तरीके से लिखेंगे, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस फॉर दैट, नहीं, वी विल नॉट राइट दैट, आई कैन नॉट राइट दैट, आई हैव टू राइट बिकॉज। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आप उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू राइट इन द वे इट हैज बीन टोल्ड हियर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। how I write is I am truly grateful for whatever and because why, वो मैं लिखती हूँ। आप लोग चाहे इनमें से चारों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको सिलेक्ट यहीं से करना है। ओके, एंड आप देखेंगे कि अगर आप कोई और तरीके से लिखते हैं ना, तो उसमें वो भाव नहीं आता है। भाव उसी में ही आएगा जो आप यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए उसमें देख के लिख रहे हैं। मैं हिंदी का भी बता देती हूँ, आप लोग हिंदी में किस तरह से लिख सकते हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों, मेरे को कारण देना है। दूसरा ऑप्शन है मैं डैश के लिए खुश और कृतज्ञ हूं क्योंकि मेरे पास क्या, क्योंकि मेरे को उससे क्या मिल रहा है। तीसरा ऑप्शन है मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं क्योंकि अपने को कारण बताना है। और चौथा ऑप्शन है तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता या देती हूं क्योंकि डैश। ठीक है, इनमें से आप अगर हिंदी में लिखेंगे तो मैंने हिंदी का भी पीडीएफ शेयर किया था, आप उसमें से भी देख सकते हैं। और अगर इंग्लिश में लिखना है तो उसका भी ऑप्शंस देख के आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। After you finish making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Yes. अब हमने तो लिख ली अपनी ब्लेसिंग्स, सुबह उठते 1 2 3 4 फटाफट 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 लिखते चले गए, लिखते चले तो गए, पर वो दिल से थोड़ी निकला, वो तो दिमाग में फटाफट लिख दिया। अब दिल का तो काम करना है ना हमको, तो दिल का काम कहाँ होता है? लिखने के बाद वापस जाएं, अपनी हर नियामत, अपनी हर ब्लेसिंग को पढ़ें। I am truly grateful for my mother because she gave birth to me. Thank you, thank you, thank you. ठीक है, अब अगर आपको वो फीलिंग अभी देखिए, हो सकता है नहीं भी, आपको लगेगा ये क्या है यार, दिन भर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे को तो कोई फीलिंग नहीं आती।
wait for a few days, see it will come, and till then please एक ही मंत्र है, fake it till you make it. And I have told this to a lot of people and they have genuinely come back and told me that yes, हमको अब धीरे धीरे फीलिंग आने लगी है. ओके, सो या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप अपने दिल पे हाथ रखें और आप फिर बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. देखेंगे वो फीलिंग आएगी. आज नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, 2 दिन बाद आएगी, 4 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद, हफ्ता में आएगा. अगर आप दिल से करेंगे तो जरूर आएगा. एंड लुक फॉर पीपल और थिंग्स यू नो विच, मतलब एकदम जो आपके एकदम दिल के करीब हो. शुरू में आप उन्हीं से ही शुरुआत करिए तो आपको वो फीलिंग आएगी. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया अपनी मदर. ओके, तो आप अपने पेरेंट्स को ले सकते हैं, आप अपने बच्चों को ले सकते हैं, आप अपने टीचर्स को ले सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को ले सकते हैं, सिबलिंग्स को ले सकते हैं, पार्टनर को ले सकते हैं, मतलब पीपल हु आर रियली क्लोज टू यू. ओके, लेट अस स्टार्ट विद पीपल टुडे हु आर वेरी क्लोज टू यू. यहाँ पे ऑप्शंस है हम लोगों के पास, चैप्टर में दिया हुआ है. इट विल बिकम वेरी इजी टू यू. प्लीज कंटिन्यू. To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures choose symbols like the sun to direct the gratitude towards. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. Yes. Now, suppose मेरे को ना किसी ने कोई गिफ्ट दिया और आई एम टॉकिंग टू अ थर्ड पर्सन एंड आई रियली रियली लव दैट गिफ्ट. तो हम क्या बोलते हैं, आई एम सो थैंकफुल कि XYZ ने मुझे ये गिफ्ट दिया. हम बोलते हैं ना, we mention आई एम सो थैंकफुल कि XYZ ने मुझे ये गिफ्ट दिया so that I can क्योंकि मुझे ये गिफ्ट से मुझे ये फायदा हो रहा है. हाँ? तो जब हम डायरेक्ट करते हैं ना अपना ग्रैटिट्यूड किसी की तरफ, वेदर इट कैन बी सृष्टि को बोल सकते हैं हम, कोई भी जिसको भी आप जिसकी आराधना करते हैं, सपोज कृष्ण भगवान को, राम जी को, शिव जी को, गणेश जी को, आप जिनको भी बोल सकते हैं. अगर आप सपोज आप कोई की पूजा नहीं करते, आपको यूनिवर्स बोलना है, सृष्टि बोलना है, आप वैसे भी कर सकते हैं. इफ यू जस्ट वांट टू राइट आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आप वैसे भी कर सकते हैं. बट व्हेन यू आर डायरेक्टिंग इट टुवर्ड्स समबडी, किसी को अगर दिमाग में रख के बोलते हैं ना, थैंक यू भगवान जी कि आपने मेरे को इतना अच्छा जीवन साथी दिया, क्योंकि वो मेरे को हर तरह से खुश रखते हैं. सपोज, तो जब हम वो भगवान जी को की तरफ बोल रहे हैं, हम उनको ध्यान में रख के अपनी ब्लेसिंग बोल रहे हैं, तो वो उसमें ज्यादा फीलिंग आता है. एंड फीलिंग आना क्या होता है, अगेन हम जितनी फीलिंग से बोलेंगे हमारा मैजिक उतना जल्दी काम करना शुरू करता है. राइट? तो इसीलिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि इसीलिए हम लोगों को मालूम है, हम लोग तो कब से सूरज भगवान को जल चढ़ाते हैं ना, हमारे तो कल्चर में ही है. आप धीरे धीरे ना, जैसे जैसे हम बुक में आगे बढ़ेंगे, यू विल रियलाइज कि हमारे हिंदू कल्चर में कितना कुछ है जो इस बुक में लिखा हुआ है और हम लोग फॉलो करते हैं. आजकल तो मॉडर्न हो गए, आधा चीज फॉलो ही नहीं करते हैं, बट फिर भी हमारे बड़े लोग अभी भी बहुत कुछ फॉलो करते हैं. तो वी विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि उनकी लाइफ इसलिए इतनी अच्छी थी पहले. दे वर सो हैप्पी. वी आर तो नाउ ओनली काउंटिंग आवर मिसफॉर्चून्स. हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं. नहीं, स्टार्ट काउंटिंग, स्टार्ट लिविंग हैप्पी अगेन. ओके, प्लीज कंटिन्यू.
The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day. But the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life you have received and are counting to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. Yes. रोंडा बन बोल रहे हैं कि ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ रोज सुबह उठते आधा नींद में हम लोगों को ब्लेसिंग्स लिखना है। और अगर हम ये लिखते हैं फॉर द नेक्स्ट 27 डेज, एक्चुअली इट इज फॉर द नेक्स्ट 28 डेज, 28 डेज की प्रैक्टिसेस है हमारी, एंड इफ यू डू इट रेगुलरली it will become a part of your life and you have to do it lifelong. She is telling you 27-28 days. I am telling you do it lifelong. This is a very very simple practice. कुछ नहीं करना है, सुबह खाली अपनी 10 blessings काउंट करनी है और उनको लिखना है। अगर आप उसको लिखते हैं, शुरू में लगेगा आपको, आज लिख लिया, चलो कल लिख लिया, परसों, आज क्या चीज के लिए लिख लिया, वो तो मैंने लिख लिया। धीरे धीरे जब करने लगेंगे ना, तो वो अपने आप दिमाग में आए, इट विल कम टू यू। एंड कोई दिन आप ऑफिस में बैठे हैं ना, आपको रियलाइज होगा इसके लिए तो ग्रेटिट्यूड बोला ही नहीं, इसके लिए तो बोला ही नहीं। घर पे है, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, अरे टीवी के लिए तो नहीं बोला, और किचन में है तो अरे कुकर के लिए तो नहीं बोला। आसपास लोगों को देखिए, डोमेस्टिक हेल्प के लिए नहीं बोला, पियोन के लिए नहीं बोला, ड्राइवर के लिए नहीं बोला, अरे वो इलेक्ट्रिशियन घर में आके आज बल्ब रिपेयर करके गया, उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। हेल्थ ऑर्गन्स को ले लीजिए, आंखों के लिए नहीं बोला, अरे मेरे इंटेस्टाइन्स के लिए तो नहीं बोला मैंने। मतलब यू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, रोज आपको ध्यान में आएगा, अरे इसके लिए बोल सकते, उसके लिए बोल सकते, उसके, मतलब यू विल, there is no end. हम आज इतने बड़े हो गए, I think all of us must be at least 20-25 years old here, at least. हाँ, हम लोग कोई, there are people who are 60-65 also. हाँ, we are 50-55 also, but I'm talking at least. हाँ, तो वो 20-25 सालों में हमारे पास कितना कुछ है। Go back to your childhood, go back to when you were born. तब से अगर आप देखना शुरू करेंगे ना, there is no end. And अगर आप मेरी माने तो every day start a blessing with your parents. Please start writing with your parents, because उन्होंने जो किया है हमारे लिए, उसकी तो कोई गिनती नहीं। अगर रोज एक लिखेंगे तो भी खत्म नहीं होगा till the end of my life. I have a question, Shalini. We will take questions after we finish the chapter, please. Okay. Please continue. You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. Please continue. You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? Yes.
So here Rhonda Byrne has given us so many options. हम इसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, उसके लिए, मतलब अगर हम रोज करने जाएंगे तो हम तो कितने दिन तक लिख सकते हैं अगर हम खाली इन्हीं को ही पढ़ेंगे, right? There are so many things which she has told us which we can be grateful for, and those are just examples. Once we start reading those examples, हमारा भी तो mind है, we will find so many other things which we can be grateful for, right? Please continue. Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. So magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passion, happiness, love, life. Please scroll. Nature, planet Earth, air, water, and the sun. Material goods and services, any subject of your choice. Yes. Now Rhonda Byrne has given us so many subjects. हम health और body के लिए हो सकते हैं. Thank you God, I am feeling so healthy today. I am feeling so invigorated today. So that because I can finish all my work very easily. या फिर हम body के लिए हो सकते हैं. I am grateful for my heart because it is beating 24/7 to keep me alive. ठीक है? Work and success. Thank you God, I have such an amazing boss because he has taught me so many things. Money. Thank you God, I have all the money in the world to fulfill all my dreams. Relationships. अरे ये तो सबसे important topic है. इसके लिए मतलब जिसके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं भी है या कम अच्छा है, लेट मी नॉट से कि अच्छा नहीं है, जिनके साथ थोड़ा कम अच्छा भी है, जिनके साथ आपको लगता है दैट यू नीड टू इम्प्रूव, try and look for things to be grateful for in that relationships also. Okay, आज initially write 10 gratitude for the people जो आपको एकदम जो आपके inner circle के हैं, आप एक बार उनसे शुरू करिए, then you can go for passions are suppose you're very good at something, you're good at singing, you're good at drawing, you're good at dancing, whatever. Be grateful for that talent, for whatever props are used in fulfilling that talent of yours. आपका passion को पूरा करने में आपको जिन चीजों की जरूरत. Happiness. Thank you God, I'm so happy today. I'm so happy to be alive. आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे. Right? Next is love, life, planet Earth, air, water, and the sun. We can be grateful for all the 5 elements: air, water, sun, fire, earth, the skies or the universe, anything. Material goods, हमारे पास जो भी हमारी चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, उनके लिए. किसी ने हमारे लिए कोई सर्विस किया, उसके लिए. कैब में गए, कैब वाला को थैंक यू. इलेक्ट्रिशियन आया, उसको. प्लम्बर आया, उसको. किसी ने हमारे लिए कोई हमारे लिए मेडिसिन लाके दिया, उसको हम थैंक यू बोल सकते हैं. और एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ योर चूजिंग. ओके, प्लीज कंटिन्यू. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. And how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. Yes. Every time you will write your blessings, जब भी आप लिखेंगे उसके बाद आप नोटिस करेंगे ना कि अंदर से आपको बहुत अच्छा लगता है. And it actually happens, you know, you feel positive. I'll tell you, it happens, you know, कई बार क्या होता है कि we are in a situation जहाँ पे हमको बहुत नेगेटिव फील होता है.
सामने वाले ने कुछ कर दिया, आई एम फीलिंग नेगेटिव। या हम कहीं हैं, सपोज आई एम इन माई ऑफिस एंड दो जन आपस में किन्हीं की बात कुछ हो रही है एंड आई एम नॉट लाइकिंग दैट। तो व्हाट हैपेंड, अभी तक हमको क्या हो रहा था, हम उनके साथ हम भी नेगेटिव हो जा रहे थे। बट ट्राई दिस, आई एम टेलिंग यू पीपल, ट्राई दिस कि अगर आपको कोई सिचुएशन में आपको नेगेटिविटी आ रही ना, आप अपने चारों तरफ देखिए and say that thank you God for my computer, thank you God for my mouse, thank you God for the pen that I am using, thank you God for the book that I am reading, thank you God for the fan, thank you God for the AC। मतलब आप बोलते चले जाइए, you will not notice the circumstance which was pulling you into negativity। आप वहां से निकल जाएंगे, आपका फोकस गया, आप वापस आ गए। एनर्जी फ्लोज where attention goes। Okay, shift focus from negativity to positivity। okay, जो आप अप्रिशिएट करेंगे वो अपने आप अप्रिशिएट होगा। ये मैंने कल बोला था ना, what you appreciate। ओके, what you focus on expands। ये 3-4 चीजें जो है ना, हम लोगों की मंत्रा होनी चाहिए। fake it till you make it, what you focus on expands, what you appreciate appreciates, energy flows where attention goes। तो ये सब जब हम लोग सोचेंगे ना, तो हम अपने आप पॉजिटिव रहने लग जाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ वी आर कमिंग टू मैजिक रिमाइंडर। मैजिक रिमाइंडर is make sure to read tomorrow's magical practice sometime today। That is okay, I'll tell you, no issue। Let's go to the magic practice number 1। Now this is what we have to do today। Please read। Magic practice number 1. Count your blessings. 1. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. 2. Write why you are grateful for each blessing. Number 3. Go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Number 4, repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Read tomorrow's magical practice today. Number 5. Yes, so first क्या लिखा हुआ है कि first thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for। कल सुबह सबसे पहले आंख खुलते ही हम लोगों को यही करना है, we have to write 10 blessings। ठीक है, and we have to write our blessings in the way that Rhonda Byrne has told us। I am truly grateful to whoever you want to direct it to, and for something and why we are grateful for that thing। okay, thing, person, जिसको भी हमको, जिसके लिए भी हम लिख रहे हैं। write why you are grateful for each blessing। then after we have written our 10 blessings, we will again go back to the first blessing, read it, either you can read it aloud or you can read it in your mind and say the magic words। what are the magic words? The magic words are thank you, थैंक यू, थैंक यू, या फिर हिंदी में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। and feel as much gratitude for that blessing as much as you possibly can। okay, फिर repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days। मतलब ये टोटल में ये बोल रही है हम लोगों को 28 days तक करने के लिए। but we will come to the end of those 28 days and then see how we are feeling, because I can assure you, you would want to do it every day after that also। now number 5 is read tomorrow's magical practice today। tomorrow's magical practice is that we have to arrange for a magic rock। I showed you magic rock yesterday। मैंने वो पत्थर दिखाए थे आप लोगों को। it has to be a natural rock, it cannot be plastic, ग्लास और अ मैन मेड रॉक। कोई फैक्ट्री में बना हुआ नहीं होना चाहिए।
इट कैन बी कोई पत्थर जो हम लोग जमीन से निकालते हैं, जिस तरह का, कोई डायमंड भी हो सकता है, कोई मतलब प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन भी हो सकता है, या जो पेबल्स होते हैं हम लोगों को बीच के पास गार्डन्स में मिलते हैं, हमारे प्लांट्स के हम लोग डेकोरेटिव प्लांट्स में लगाते हैं, वैसा भी कुछ हो। यस, दैट इज गुड, that is good, but you have to feel it. It should fit in your palm. It should not be very heavy and it should be smooth. कोई pointed edges नहीं होना चाहिए, because you should feel good after holding your you Rock. should feel good after holding your rock. Okay, it should call to you. होता है ना कि वो पत्थर मुझे बुला रहा है। हमने वो मूवी देखी है ना, सीक्रेट, सबने देखी है? तो वो, you haven't seen it? I've read the book. I haven't seen the movie. So I will send the link again in the group today, and we can all watch it again if we want. Okay? ठीक है, let us, हाँ, okay. ठीक है, now I would like everybody to please switch on your cameras. All of us, please switch on our cameras. सबने अपना कल ड्रीम लिस्ट बनाया क्या? Please unmute yourself, everybody. Have all of us made our dream list? Yes. Yes. Huh? Dreams जो लिख रहे हैं, हाँ? You already had the. You're still making? That's okay. We have about 10 days in our hand. आप आराम से लिखिए उसको. Make it very very detailed. सोच के एक पॉइंट लिखिए उसमें, हाँ? And make it your dream. किसी और का ड्रीम नहीं. हाँ, make it your dream. कि मेरे को ये चाहिए. It can be in the field of health, money, relationship, कोई मटेरियल थिंग हो सकता है अगर आपको चाहिए. आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट वो आपका ड्रीम होना चाहिए और उसको आपको इमेजिन, मतलब आपकी इमेजिनेशन जहां तक जाती है, जितना डिटेल करके आप लिख सकते हैं. फिल pages after pages of your dreams. They are your dreams, yeah. You have to attain your dreams. हम लोग आए किस लिए यहाँ पे? To achieve our dreams, right? All of us, we have come here to achieve our dreams. तो हमको हमारे ड्रीम्स को बहुत अच्छे से लिखना है, एकदम एक पॉइंट. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, मैंने पहले भी दिया था. सपोज वो हमारे मूवी में था, पर अगर हमको हमारा ड्रीम होम चाहिए, प्लीज राइट हमको कौन सी सिटी में चाहिए, कौन सी एरिया में, लोकेलिटी में चाहिए, कितने कमरे चाहिए, कैसा पेंट चाहिए, कैसा फर्नीचर चाहिए, सब कुछ लिखिए. कैसी फ्लोरिंग चाहिए, हम उसमें क्या क्या लगाएंगे, कैसा फर्नीचर लगाएंगे. आपको जहां तक आपकी इमेजिनेशन जाती है. अगर आपको सपोज अगर आपको कोई पीस ऑफ ज्वेलरी चाहिए, ओके, सपोज आपको कोई पीस ऑफ ज्वेलरी चाहिए, तो आप वो भी लिख सकते हैं. आपको कहाँ से बनवाना है, कितने रुपए उसमें स्पेंड करने हैं, हाँ, कितना तक का होना चाहिए, कितना उसका कैरेट होना चाहिए. यू कैन राइट एवरीथिंग. अगर कोई रिलेशनशिप आपको चाहिए किसी के साथ, सपोज यू वांट अ परफेक्ट पार्टनर, ओके, तो आपको उस परफेक्ट पार्टनर में आपको क्या हाइट चाहिए, कैसा, सबकी देखिए अलग अलग होती है थिंकिंग, कैसा रंग चाहिए, क्या उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए. एवरीथिंग यू कैन राइट whatever you want. Now I cannot tell you because that is not my dream. I will write for my dream, you will write for your dream. Okay? Okay? अगर कोई के साथ relationship improve करना है, that is also very important because we want a perfect relationship with somebody. तो उसमें हमको लिखना है कि हमको वो रिलेशनशिप कैसी चाहिए. हमको उसके साथ हॉलीडेज पे जाना है, हमको उनके साथ डिनर्स पे जाना है, वो हमको चाहिए कि वो हमको रोज गिफ्ट ला के दे, हमको चाहिए कि वो रोज हमको हग करे, हमको रोज स्माइल पास करे, रोज मेरे मतलब
कैसे रिलेशनशिप यू वांट कि भाई वो और भी आसपास वाले लोगों को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करे, आपको जो चाहिए आप सब कुछ लिखिए। प्लीज मेक इट वेरी वेरी स्पेसिफिक, राइट। आप जितना ड्रीम है आपके 10, 15, 20 जो ड्रीम्स है सबको लिखिए। They are your dreams and your dreams are why we are here. Okay, any questions please? Sunita di, you wanted to ask something? Actually, I wanted to ask, like, can we repeat our blessings? Like, No. every day, can I write ki I am thankful to God or grateful to God for keeping me alive? Like, No. देखिए वो आप लिखिए, that is your generic gratitude. पर उसके अलावा आपको 10 तो लिखना ही है. And if you are writing ki for keeping me alive, why? Because. Light of the sun. Because तो देना है ना आपको. New opportunities. हाँ, whatever. वो देखिए आप रोज आप क्या लिखेंगे कि भाई I will achieve something new opportunities. सॉरी आज मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, उसके अलावा आपको रोज 10 नई ब्लेसिंग्स लिखनी है. Like what I do is, now this is mine, okay? You can do it as you want. मैं लिखती हूँ रोज एक ब्लेसिंग मैं लिखती हूँ मेरे पेरेंट्स के लिए. दूसरा मैं लिखती हूँ as you said, I thank God for being alive. Then third, I write for the food and water because those are the things that actually keep me alive. Okay, but unke alawa I write 10 more blessings. So these 3 are generic and 10. हाँ, मैं 10 तो रोज नया लिखती हूँ. अच्छा क्या होता है ना, हम अभी तो ठीक है, you are very new, you will have new things to write about. But suppose जैसे मैं पेरेंट्स के लिए भी अगर लिख रहे तो I will have to find new things to write. And please आप जितना उसमें इमोशन डाल सकते हैं, एनर्जी इन मोशन, ओके, जितना आप उसमें फीलिंग्स डालेंगे, जितना आप उसको दिल से लिखेंगे, उतना आपको अच्छा लगेगा. It's going to work better. Yes, it is you're going to feel much better. You're writing a gratitude, suppose for your health. Okay, somebody's helped you, you're writing for that. And डोमेस्टिक हेल्प के लिए या किसी के लिए भी अगर आप वो फीलिंग के साथ लिखिए, वो अपना घर छोड़ के आपके पास आ रहे हैं काम करने के लिए, आपका दिन सुबह 6 बजे से या 7 बजे से उठ के रात को 10-11 बजे तक आपको सर्विस दे रहे हैं, आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, आप कितना कुछ दिल से लिख सकते हैं. And the more you write, the more abundance you have in your life. Okay, anybody else? Any questions please? No? Shall we do a gratitude prayer now? Please join your hands, close your eyes. Thank you भगवान जी मेरे को एक नई सुबह दिखाने के लिए. थैंक यू भगवान जी मुझे यह जीवन दान देने के लिए. थैंक यू भगवान जी मैं सांस ले सकती हूँ ताजी हवा देने के लिए. थैंक यू भगवान जी सूरज की रोशनी देने के लिए जो हमको रास्ता दिखाती है दिन भर. थैंक यू भगवान जी स्वच्छ निर्मल पानी देने के लिए जो हमको जीवित रखता है. थैंक यू भगवान जी धरती माता के लिए जिनसे हमको सब कुछ मिलता है, हमारे खाने के लिए फल सब्जियां फूल पौधे सब कुछ. थैंक यू भगवान जी यह विस्तार आकाश के लिए. थैंक यू भगवान जी मेरे माँ बाप के लिए जो मुझे इतना प्यार करते हैं. थैंक यू भगवान जी मुझे भरा पूरा प्यार करने वाला परिवार देने के लिए. थैंक यू भगवान जी मुझे रहने के लिए सुंदर घर देने के लिए, तन पे कपड़े और खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन देने के लिए. थैंक यू भगवान जी मेरी हर इच्छा पूरी कर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. Now I want you to repeat with me 3 things today, 3 affirmations. Okay, we will say this.
I am blessed. I am blessed. I am loved. I am loved. I attract positive thoughts easily and effortlessly. I attract positive thoughts easily and effortlessly. I am full of health and vitality. I am full of health and vitality. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you. Thank you, thank you, thank you, God. अच्छा, एक और एक्सरसाइज, दिस यू कैन डू एवरी डे इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप. जब आप बाहर निकलते हैं, आकाश की तरफ ऐसे हाथ रखें, यू नो, टाइटैनिक पोज, या वो शाहरुख खान वाला पोज हमारा, हाथ एकदम ऐसे, एंड लुक एट द स्काई एंड से, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. And I am open and receptive to all the good that is happening in my life. Thank you everybody. Thank you so much. Thank you Sunita ji. इतना अच्छे से आप पढ़े आज. Thank you so much. Thank you everybody for being so patient with me. Thank you. Thank you so much. So much. Thank you. Thank you, Shadri. Thank you. See you all tomorrow. Bye-bye. Bye bye.